मार्केट में या आप दुनिया में रेंगना चाहते हो तो कोई रिस्क नहीं है, बट अगर जो आपको कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है तो आपको घोड़े पे घुड़सवारी करनी पड़ेगी। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। So you were inspired by Harshad Mehta? In a way, yes. Everybody takes him from his negative side, but he is the one जिसने सब लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ देखना सिखाया। I think he gave a vision. From the day one I believed कि क्लाइंट आपके पास अगर जो आपकी एक्सपर्टाइज ढूंढते हुआ है ना, तो वो काम करने में मजा है, जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। उस टाइम पे मार्केट्स आपको क्वालिटी स्टॉक्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस मिल जाते थे, जो आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में कंपनी बाद में बड़ी बनती है, वैल्यूएशन पहले बड़ा हो जाता है। यू शुड डू ओनली व्हाट यू नो। फर्स्ट यू शुड नोट डाउन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, दैट इज द फंडामेंटल रूल। बनना तो बिजनेसमैन है, जो किक ऑफ लाइफ है बिजनेसमैन बनने में है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट। एंड अगर जो आपने मार्केट से आगे सोचने की कोशिश की तो मार्केट विल टीच यू दैट मार्केट इज अबाउट एवरीथिंग। Everyone wants to know where successful investors invest their money, but very few people ask more important question, which is what do they think before investing. Today we are not just going to talk about stocks, funds and return. Today we are going to decode the mindset of one of the most seasoned and versatile investor of India, Mr. Rakesh Lahoti. So Rakesh ji, welcome to the show. Thank you. And sir, I have a confession to make. I am not from finance background and I don't know anything about stock market and how prices go up and down. And so whenever someone is like, market बहुत ऊपर चल रहा है, अभी invest कर लो, I'm like, how are these guys predicting? So today I want to know from you exactly what happens in the stock market, or basically the ABC of all this finance sector. So you have to teach me everything, as I'm very little baby because I literally don't know anything. So शुरुआत से शुरू करते हैं. So first of all, it's going to be a easy task for me also, because when you don't know anything that I bluff, you'll have to accept it. So I think it will be a easy conversation for me also. Yeah. And, but yes, I'll definitely share my all experiences with you. And the field of finance is, I would say, one of the most exciting and interesting subject. Yes. And once you take a dip into it, then you enjoy swimming of it. So let's dig into it. So first of all, I don't want to start with stock market and your life right now. Let's go back to the first Rakesh, like Rakesh when he was nothing but just a child. How was your childhood? I would say I am the luckiest, one of the luckiest kid, because I was a very pampered kid in my family. और एज यूजुअल जैसा हर कोई बच्चा होता है, इसी तरह से मुझे भी वो बचपन का सब आनंद मिला, बिकॉज पेरेंट्स का पूरा प्यार था। 3 बहनें थी, तीनों बहनों का से सबसे छोटा मैं, तो तीनों बहनों का भी पूरा प्यार मिला। एंड वी यूज्ड टू स्टे इन अ ओल्ड सिटी। तो ओल्ड सिटी में इफ़ यू नो, वहाँ पर नेबरहुड का एक अपना ही आनंद, जो आज की तारीख में in a modern civic societies that is missing. But वहाँ पर I enjoyed that kid school time, kids time और बचपन to its best, because हर कोई आपका parent था, हर कोई आपका friend था, हर कोई आपका brother था. So everyone was surrounded by you. Yeah. So tell me one thing, how your household was different from say your friend's household, because you are coming from a family who already has CA, right? Your father was also in this industry only. So how was your childhood different from your other friends' childhood?
एक मेजर जो डिफरेंस था, फादर हमको हर समर वेकेशन में ऑफिस ले जाते थे और हमको Okay. बोलते थे कि भाई आपको ऑफिस पे आकर के समर वेकेशन का वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर वेकेशन यू हैव टू डेडिकेट इट टू ऑफिस। एंड वहाँ पर जब हम लोग सोचते थे कि बच्चे सब मेरे दोस्त खेल रहे हैं और मैं यहाँ ऑफिस पे बैठ करके टाइपराइटर चला रहा हूँ, तो वो एक डिफरेंट सा फीलिंग था। टुडे आई फील दैट आई वाज लकी इन दैट वे, बिकॉज जो फाउंडेशन मेरा उससे बना दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट टुडे। राइट। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, बट अदरवाइज पेरेंट्स का सपोर्ट भी उतना था, प्यार भी उतना था, दुलार भी उतना था, हमने मस्तियाँ भी उतनी की, वही पुरानी ट्रेडिशनल गेम्स, वही गली क्रिकेट, राइट। वही सब चीज़ों का आनंद भी पूरा लिया। सो ओके, सो आपने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था वो था एट द एज ऑफ 17, राइट? सो आपके पापा ने आपको ट्रस्ट कैसे किया इतने, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए एट द एज ऑफ 17? सी पापा शुरू से पैसिव इन्वेस्टर थे ओके। एंड ही वॉज इनटू मार्केट्स, तो उनके लिए मार्केट कुछ नया नहीं था। एंड ही वांटेड कि जैसे उन्होंने मुझे ही खाली वेकेशंस में ऑफिस ले गए ऐसा नहीं है, मेरी तीनों सिस्टर्स को भी ही इंसिस्टेड कि यू शुड कम टू ऑफिस, सो दैट ओपन माइंडेड ही वॉज। एंड सेकेंड थिंग दैट आई वॉज लकी वॉज कि हिज फिलोसॉफी वॉज ऑल्सो गिविंग ऑल सपोर्ट टू हिज किड्स। जैसे उन्होंने मुझे मेरे बचपन के टाइम से ही एक सीख दी थी जो मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ में अगर जो नर्वस हुए या हमको कहीं पर भी उनको लगता था कि नहीं इसके कैरियर में जोश भरने के लिए मुझे अगर जो इसको कुछ सिखाना है, तो मुझे एक सीख उन्होंने दी कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आप मार्केट में या आप दुनिया में रेंगना चाहते हो तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप अगर जो रेंगोगे तो गिरोगे कभी नहीं। बट अगर जो आपको कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है, आपको अगर जो कुछ आगे का अपना दुनिया उस हिसाब से बनानी है, तो आपको घोड़े पे घुड़सवारी करनी पड़ेगी। और घुड़सवारी करोगे तो हो सकता है कहीं आपको गिरने का चांस भी लगे, बट आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब आप रिस्क उठाओगे। राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, जब उन्होंने हमारे नींव में जो आप बोलते हो ना कि पौधे को जैसे सींचते हैं, हाँ। तो उन्होंने हमारे पौधे को वैसे सींचा कि भी रिस्क से डरो मत। एंड आई एम मच ऑब्लाइज्ड बाय हिम ऑल्सो, बिकॉज उस टाइम पे भी उन्होंने हमको कभी रोका नहीं कि नहीं राकेश इसमें लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे मैं मार्केट, दैट वाज द पीरियड लाइक यू टोल्ड के 17 ईयर्स, 17 साल का जब मैं था, दैट वाज ईयर 1992, एंड एट दैट टाइम द ग्लैमर ऑफ हर्षद मेहता वाज एट पीक। तो हर कोई अगर जो आप गली में निकलोगे तो यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स, और स्टॉक मार्केट्स में हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता था कि आज हर्षद मेहता ने ये लिया, आज उसने ये बेचा, अब ये चलने वाला है, ये बढ़ने वाला है, ये गिरने वाला है। तो आई वॉज सराउंडेड बाई दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस अराउंड, लकीली ऑल्सो। राइट। तो मैंने भी एक दिन आकर के पापा को बोला कि पापा हर्षद मेहता ने आज अपोलो टायर्स लिया है, मैं भी लूँगा। तो ही टोल्ड के गो अहेड, बाय, डोंट वरी। Wow. So like very important lesson your father gave me, or the freedom, I would rather say, is freedom to fail. Like you can fail and he will be there for you. Right. So you are telling me Harshad Mehta was the glamour at the time. So you were inspired by Harshad Mehta? Was that? In a way, yes. Yeah. आज अपन अगर जो उसकी वो स्कैम 92 वाली Yes, I know him from that web series only. वेब सीरीज से देखते हैं तो एवरीबडी टेक्स हिम फ्रॉम हिज नेगेटिव साइड, बट ही इज द वन जिसने सब लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ देखना सिखाया, एंड अपनी उम्मीदों को कैसे बड़ा कर सकते हैं या अपने एम्बिशंस को कैसे बड़ा बना सकते हैं। वो स्टेपिंग स्टोन जो था वो मेरे जब आई वॉज इन स्कूल डेज, तो उस टाइम के बच्चों को उसने हर्षद मेहता ने, आई थिंक ही गिव अ विजन। राइट, दैट्स ग्रेट। सो आपने जब वो अपोलो टायर्स लिया, इट वाज सक्सेसफुल ट्रेड, राइट? सो आफ्टर दैट
क्या आपका माइंडसेट किस दिशा में शिफ्ट हुआ कि अब कोई भी ट्रेड ले लेंगे बहुत अच्छा जाएगा, या कुछ रिसर्च करते थे, क्या करते थे? I'll confess कि अपोलो टायर से आई मेड अ प्रॉफिट, और Okay. फर्स्ट ट्रेड फर्स्ट प्रॉफिट, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंस टू, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 17. इट लुक्स लाइक रातों रात माल हो गए। नहीं, रातों रात मालो माल से ज़्यादा कि अपने से ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है मार्केट में. सो दैट फीलिंग लेड मी टू अ काइंड ऑफ एन ओवर कॉन्फिडेंस. Okay. और मुझे लगा कि नहीं, आई एम ऑल्सो अ स्मार्ट इन्वेस्टर एंड मैं भी इसमें अच्छा पैसा बना सकता हूँ. सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इट ब्रॉट इनटू माय माइंड्स. Okay. And where did that lead you? This overconfidence. जो ओवर कॉन्फिडेंस किसी के भी साथ किसी भी फील्ड में करता है वैसा ही होता है. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉफिट, देन आई गॉट अ लेसन दैट मार्केट इज मच मोर इंटेलिजेंट देन यू. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. Okay. फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट. एंड अगर जो आपने मार्केट से आगे सोचने की कोशिश की तो मार्केट विल टीच यू दैट मार्केट इज अबव एवरीथिंग. You got your lessons at the age of 17-18, right? So उस टाइम पे मार्केट एकदम अलग था. अभी जो हम ट्रेड करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, राइट? सो कैन यू टेल मी इन अ ब्रीफ कि उस टाइम का मार्केट कैसा था, और अगर हम देखें कि आज का मार्केट कैसा है, तो what type of opportunities do we get now जो उस टाइम पे नहीं मिलती थी? See, उस टाइम के मार्केट और अभी के मार्केट में देर आर टू फंडामेंटल डिफरेंस. वन फंडामेंटल डिफरेंस इज उस टाइम पे मार्केट्स आपको क्वालिटी स्टॉक्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस मिल जाते थे, विच वाज अ जनरल थीसिस. बिकॉज कोई भी कंपनी अगर जो मार्केट में आ रही है इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी इशू या इन सेकेंडरी मार्केट्स, तो बिकॉज द मार्केट्स वर नॉट डीपर, तो आपको अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, लॉन्ग स्टोरी स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते थे उस टाइम पे. तो दैट वाज एन एडवांटेज आई वुड से, जो आज की तारीख में नहीं है. आज की तारीख में कंपनी बाद में बड़ी बनती है, वैल्यूएशन पहले बड़ा हो जाता है. तो आपको वो फिल्टरिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो उस टाइम पे वैसा नहीं था. और सेकंड डिफरेंस इज उस टाइम पे मार्केट वाज इन अ नॉन टेक्निकल टेक्नोलॉजी एरा. मतलब वो इट यूज्ड टू गेट ऑपरेटेड बाय गोइंग टू रिंग्स, वहाँ से मार्केट्स. सो देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो, बिकॉज आपने अगर जो कुछ बाई या सेल करने का किसी ब्रोकर को, अपने ब्रोकर को बोला है, तो वो आगे मैनुअल मोड में वो ट्रेड को भेजते थे. फिर वो शाम को सौदा कंफर्मेशन आता था, कभी कभी आपको नेक्स्ट डे मिलता था. अभी तो आपको क्लिक ऑफ अ बटन आपको सब कुछ मिल जाती है. दीज टू फंडामेंटल थिंग्स, one is a change of technology and second is change of transparency and the change of valuations. अच्छा, तो अब हम बात करते हैं आपके जवानी के दिनों की. सो एट द एज ऑफ अराउंड 30 यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर कंट्रीज मार्केट्स. सो व्हाट वर यू सर्चिंग फॉर एग्जैक्टली एट दैट टाइम? वो मैं आपको बताऊँ ना, उसके पहले आई विल टेक यू टू अ फ्यू इयर्स फ्लैशबैक. Okay. Because after that 12th, और राकेश तुझे क्या बनना है? Because anybody would think कि मुझे क्या बनना है. और the kind of environment I was surrounded with, because every vacations I used to go to office. तो ऑफिस जाते थे तो वहाँ पर क्लाइंट्स से मिलते थे, क्लाइंट्स का ग्लैमर देखते थे, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके अंडर में मैन पावर, उनके अंडर में लोग, उनके गाड़ी घोड़े सब जो जाओ जलाली है, वो देखते थे. तो अपने को भी एक इच्छा हुई कि नहीं, राकेश बनना तो बिजनेसमैन है. जो किक ऑफ लाइफ है वो तो बिजनेसमैन बनने में है. तो शुरू से एक दिमाग में सेटल हो गया था कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फैमिली प्रोफेशनल है, अपने भी सीए करें नहीं करें सेकेंडरी है, बट आगे अपने को बिजनेस करना है. तो व्हेन आई जॉइंड कॉलेज, सो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आई विथ वन ऑफ माई रिलेटिव स्टार्टेड अ बिजनेस of sub broking. Okay. So in initial period, so early teens में you can say, I got into business. And as I said कि पापा का हमेशा backing plus support and freedom always था. तो he always told कि ठीक है तू जी ले अपनी ज़िंदगी, मैं तेरे साथ हूँ. And that was the benefit also
उस हिसाब से 12th में मतलब फर्स्ट ईयर से ही आई वेंट इनटू बिजनेस. Okay. बिजनेस के साथ साथ में वी हैड प्रॉपर्टीज, तो वी यूज टू रेंट इट ऑल्सो. तो वो भी पूरा फ्रीडम पापा ने मुझे दे रखा था कि यू डील विद ऑल काइंड ऑफ द टेनेंट्स, यू एक्सप्लोर व्हाट इज द प्रॉपर्टी विच वी कैन गिव इट ऑन रेंट वगैरह वगैरह. तो दैट इज द पॉइंट आई गॉट इनटू एक्सपोजर इनटू रियल एस्टेट ऑल्सो. Right. और ऐसे ही सारी चीज़ों में तो ऑफिस तो था ही एक साइड में पापा का, हाँ. दूसरा ये सब ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तीसरा रियल एस्टेट में कर दिया, Right. और चौथा अपनी कॉलेज लाइफ की जो एंजॉयमेंट थी वो तो थी. सो आई वाज एंजॉयिंग एवरीथिंग. वन साइड बिजनेस का एक्साइटमेंट एंड सेकेंड साइड यूथ का एंजॉयमेंट. Right. सो फ्रॉम देयर आई थॉट के व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो कंसिडरिंग दैट सोचा कि भी अब अपने आगे क्या करना है, फुल टाइम बिजनेस में जाना है या क्या. एट दैट फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ कि पापा स्टेप डाउन एंड ही टोल्ड कि नहीं, अपने को पहले सीए तो बनना ही है. Okay. सो क्वालिफिकेशन इज व्हाट विल सेव यू फॉर लाइफ. तो ही टोल्ड मी कि भाई अपने एक बार सीए बन जा, उसके बाद में तुझे जो करना है वो करना. Right. So then since the business was with the relative, I left that business and I got into my studies back Okay. and completed CA. CA बनने के बाद में then I thought कि अब क्या, because CA तो बन गए और जेनेटिक एडवांटेज था, पापा CA हैं तो हाँ. एक बेसिक बैकग्राउंड तो पहले से था, हाँ. प्लेटफॉर्म था. Yes. तो CA तो बन गए. अब CA के बनने के बाद में एक साइड में पापा की ऑफिस थी जहाँ पर बना बनाया प्रैक्टिस था. Business. एंड आई वाज इफ आई वांट टू स्टार्ट गेट इनटू दैट प्रैक्टिस, इट वाज इजी टू गो फॉर मी बिकॉज एवरीथिंग वाज एस्टेब्लिश्ड. Established. Yeah. बट जैसा मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन बनने का जो कीड़ा था, दैट वाज कीपिंग मी अलाइव हाँ. एंड अजाइल ऑल्सो. Right. कि राकेश नहीं, तो तुझे करना तो कुछ दूसरा है. Only father's business join नहीं हाँ, ओनली फादर्स, प्रैक्टिस साइड में नहीं जाना है. Right. क्योंकि जो एक्साइटमेंट बिजनेस में है वो अब तुझे शायद प्रोफेशन में ना मिले, बट बिकॉज रेडी था तो फर्स्ट इनिशियली आई जॉइंड पापा's प्रैक्टिस. वहाँ पर भी वी डिड वंडर्स बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर जॉइनिंग पापा's प्रैक्टिस we expanded that and we opened offices in Ahmedabad में ही था हमारा ऑफिस. हाँ. But then we opened office in Bombay, Gandhidham, and we expanded not only in terms of geography but in terms of revenue also. हमने उसको multifold expand किया था. Wow. And initial जो भी niche area of practice था, because one concept was very clear that from the day one I believed कि क्लाइंट आपके पास अगर जो आपकी एक्सपर्टाइज ढूंढते हुआ है ना, तो वो काम करने में मजा है. जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ इन डिफरेंट वे. बट अगर जो आपको कोई ढूंढते हुआ है कि नहीं राकेश भाई ये काम आप ही कर सकते हो या आपसे बेटर शायद कोई नहीं कर सकेगा, हाँ. तो वो काम करने में क्लाइंट आपको फीस भी अच्छी देता था और आपको काम करने में आपका डोमिनेशन भी अच्छा होता था. Yes. So that is the philosophy I believed at that time. Right. So we developed our expertise into investment banking. At that point of time जब private equity कोई नहीं समझता था, हमने उस टाइम पे we raised a private equity for one of our clients. Okay. So I am talking this about in year 99 or around 2000 or 2002 I think. So at that time private equities was a very new concept for at least Ahmedabad segment. Right. So that was a niche area. And from there people used to came to us कि हमको कुछ बैंक फंडिंग रेज करना है, हाँ. या बैंक गारंटीज या बैंक सिंडिकेशन ऑफ लोन्स. तो ऑन फील्ड ऑफ बैंकिंग वी वर नोन एज एक्सपर्ट्स ऑफ इट. Right. तो वहाँ से आई गॉट अ एसोसिएशन टुवर्ड्स or my inclination towards field of finance, I would say. So day in day out, whosoever I used to meet were either into industries who were aspiring for becoming a big industry, और जो आगे जा करके who were exploring capital markets. First stage was private equity and second was going into IPO. जिसको बोलते हैं ना आपको फ्लेवर आना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे. हाँ. Right.
So you are helping people just ऐसे ही कि अभी बिजनेस में आए हैं, ये क्लाइंट है तो इनको हेल्प कर देते हैं कि उनका फंड रेज करना है, फिर वहां से यू गॉट इनटू द ऐसे कि अभी इसी को प्रोफेशन बनाना है ऐसे. उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि इसी को प्रोफेशन बनाएंगे, क्योंकि हाँ. हाथ पे जो है, जो एज वाज सपोर्टिंग, जुनून पूरा था. हाँ. बराबर. और एक थिंग दूसरी थी कि आपको कुछ बड़ा करना है. आप प्रोफेशन में करें, बिजनेस में करें, कहीं भी, बट उस टाइम पे प्रोफेशन में था, तो प्रोफेशन में एक जुनून था कि कुछ तो बड़ा करना है, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है. और जो मैंने आपको बताया पहले के पापा की जो फर्स्ट इनिशियल सीख कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो वो एक कहीं ना कहीं इन रूट्स ऑफ माय थॉट प्रोसेस वाज ऑलवेज देयर. सो यू ऑलवेज वांटेड टू टेक मोर एंड मोर रिस्क. मोर एंड मोर रिस्क. एंड द विजन वाज बिगर के नहीं, कुछ बड़ा करना है. ओके. सो यहाँ तक आप डील कर रहे थे सब कुछ इंडियन मार्केट में. देन फ्रॉम वेयर डिड द थॉट कम अबाउट ग्लोबल मार्केट्स? ग्लोबल मार्केट्स में सिंस पैशन टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, जैसा मैंने बताया आपको, फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज इटसेल्फ आई स्टार्टेड अ सब ब्रोकिंग बिजनेस ऑफ इक्विटी मार्केट्स. तो पैशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स था. जब मैं एट एज ऑफ 17 आई टुक माय फर्स्ट ट्रेड, देन आई वेंट इनटू बिजनेस ऑफ सब ब्रोकिंग. So passion of capital market was always there, and luckily as a CA practice we got empaneled with regulator SEBI. Okay. Or SEBI appointed us for couple of brokers to look into their books of accounts whether they are following the regulators policies or not. Okay. So वहाँ से we got into touch with lot of capital market intermediaries. Okay. तो वहाँ से एक step और आगे बढ़ा इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट. तो दुनिया थोड़ी और एक्सपांड हुई. एंड सिंस इंक्लिनेशन और कैपिटल मार्केट की तरफ पैशन था, उस टाइम पे सोचा कि भाई अब इसको अगर जो अपने को और आगे डीपर जाना है, तो बिफोर गेटिंग इनटू सी बच्चों के एज में 17 की उम्र में आपने ट्रेड किया was a different thing. But now if you want to make your life on markets and with markets, so you need to know this market more deeply. And coincidentally there was a program wherein we visited 6 nearby countries which included Shanghai, Korea, Singapore, Thailand, Mauritius and Hong Kong. So that was a program to study those markets. So in my 30s I got that opportunity. I went to all markets as a delegation. And we studied those markets के इंडिया के मार्केट से वो क्या अलग है. Right. And I got a chance के I could learn lot of insights. See, these all things ultimately somewhere register in your subconscious mind. Right. Okay, this is something different that can make something different for you. Right. So can you share some insights from that travel experience you had? एक तो we were a very small team of people who traveled because it was a dedicated specially focused program. जो भी हमारे साथ में थे, they all were experts of market, and I was in 30s and they were probably experts of market. So in that journey or in the travel itself, I learned lot of them. Then we went to almost all regulators. Like आज आप अगर जो सिंगापुर जाओ और बोलो कि मुझे मॉनिट regulator of Singapore of markets मिलना है, तो they would not allow you to meet. But we walked in. We understood from there what are their policies. What is उस टाइम पे आज जो अपने यहाँ गिफ्ट निफ्टी है, उस टाइम पे वहाँ पर SGX था. And SGX पे this was listed. So SGX was a new market at that point of time. तो SGX क्या है, वहाँ का exchange क्या है, similarly Hong Kong market क्या है, Hong Kong market में so every market had its own peculiarity. Like Shanghai, the broker whom we met or whom we visited, I'll tell you at that point of time, I'm talking about 2010. उनकी जो bottom line बोलते हैं, bottom line मतलब profit, उनका जितना profit होता है उतना उस टाइम पे अपने यहाँ के किसी broker का top line जो turnover होता है वो होता है. Okay. So that was a size difference. Korea, they were ahead from us in terms of technology. Singapore, they were ahead in terms of their own
policies and principles. So every market had their own way to explain that what difference that they have. Was that right? And second thing that I learned from there was that there are the global mismatches are there in terms of products. Like आपको gold यहाँ जो भाव मिल रहा है आपका सिंगापुर में भाव अलग होगा. Okay, why? But gold is a metal, right? It should cost same, na? It cost maybe due to interest, GST taxes or what? Taxes is one of the component. Right. But I just gave an example of gold. Okay. But similarly, there are many commodities into where we trade. बराबर. तो हर commodity का हर market में there was a different because every asset or a commodity is traded on its demand and supply. But so it is traded on the demand and supply of international market or particular country's market? First come country. Okay. Second comes global. Okay. So what used to happen is that the local traders, they used to decide the local prices. And global traders, they used to reduce that spread or disparity between the global markets and local markets. Okay. तो global market में से for example आपको gold मिल रहा है 100 रुपए में, कहीं पर आपको वो 101 रुपए में होगा, कहीं 99 में होगा. तो that is what we found कि नहीं, there is an opportunity in this. Okay. And this opportunity is called arbitrage. Okay. So I learned arbitrage from there. Right. We also went to Mauritius. There were a lot of experts of this subject operating from that country as well. Okay. So every country taught me a different thing. Okay, so let's talk about investments now. Right now people are saying that you should have specialized one segment where you are investing and you should be, thorough into that investment philosophy or policy, whatever. But you are coming from a background where you have invested in various markets, various assets. So what do you think on that? Should we go for particular one specialization or should we allocate our asset in different things? See, I'll split my answer in two parts in this. Okay. First and foremost is you should do only what you know. So if you don't know real estate, but just for diversity, if you venture into real estate, is also a good concept of investing. Okay. So luckily, as I told you and as I explained you in my conversation, from initial period itself, I learned equity. Then when I was working with father, I used to deal with our real estate investments. So I got an exposure to real estate also. Similarly, whatever liquidity that we used to have, so we used to park it in either lending to the private people or in parking into fixed deposits or whatever it is. So वहाँ से investing into debts also we learned. So equity, real estate, then debt, then commodities also. As I said, we used to visit clients' places. And every client had their own business. तो हर एक बिजनेस की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो कमोडिटीज और मेटल्स में ट्रेड करते थे. तो फ्रॉम देयर आई लर्नड और आई गॉट सम एक्सपोजर टू मेटल्स ऑल्सो. So that is the reason I had this background and experience. Right. So, and when that was there with me, and when I came as a full-fledged investor, or I became a full-fledged investor, I thought, why not to implement that into our personal life also. Right. And that is the reason it was very easy for me to invest into different asset classes. Right. So it was not difficult for me कि real estate में invest करेंगे कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हर asset class का अपना एक typical nuances होता है. Right. Real estate में parallel economy का concept fundamental रहता है. So over the period of time, you might have invested in very different stocks and all, right? Can you tell me one investment where you were very much confident that it will
go good, but it didn't perform as per your expectations. आप दुखती नस पे हाथ रख रहे हो. But it's very much important to know. See, before that I'll tell you, Yeah. market teaches one thing every day. And for an example, for what you asked me, my experience I'll share with you is my investment into Syntex Limited. Okay. I invested into Syntex, and जो मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले you look at intangibles, then you go to fundamentals. So somewhere I missed something, Okay. but it is a perfect case of glamour, मतलब mask of a glamour on an ugly story. Okay. Why would you say that? Because Syntex नाम काफ़ी branded था. They were leaders into their product. The company had a long legacy. The name in the markets was good. And they were known for their product. Like आज भी आप अगर जो उनके प्रोडक्ट का किसी को भी आप ओवरहेड टैंक का पूछोगे तो दे वुड नॉट से, वो ये बोलेंगे सिंटेक्स Yes, की yes. टंकी yes. लगा दो. Yes, yes. दो द कंपनी इज नॉट प्रेजेंट, Hmm. बट आज भी वो नाम है. Hmm. तो वो इंटेंजिबल्स को आई बिलीव्ड एंड आई पार्शियली इग्नोर्ड फंडामेंटल्स. Okay. And based on that I invested into it, but later on what we found was that promoters had a short vision. They siphoned off the funds, and these all things, though I'm speaking on a camera, but they are in public domain. Okay. But to an extent, with that disclaimer, to an extent that I know, probably they siphoned off the funds. And there was a complete lack of governance. So it was on promoter side, but the heat that got transferred was on investors' money, and I suffered a significant loss into that stock. But Right. anyway, every failure ठीक है. gives you a lot of teachings which can ultimately take you to making or generating a lot of success stories. Very true. Okay, we have talked about stocks now. Can we talk about different sectors? So there are so many sectors into investment also, right? So how should we look into that? And should we diverse our investment into different sectors as well? We should, but I am a contrarian investor from that point of view, because as I said, I have few fundamental principles of investing. I may be right, I may be wrong, but it is my individual Okay. philosophy, and I feel I am on a right track. And in that, first is Bhav Bhagwan hai. What is Bhav Bhagwan hai? See, investing of stock में सबसे important is value and भाव of that stock. So that is what I consider. And जो मैंने आपको अगले conversations में भी बताया कि किसी भी स्टॉक को rather than I selecting a sector, I consider the price of that stock more importantly. और अगर जो मुझे इसको आपको बहुत ही ल्यूसिड वे में समझाना है तो विल हैव टू गो बैक टू स्कूल डेज. जब अपने स्कूल में साइंस की क्लास में बायोलॉजी में जो टीचर अपने को समझाते थे केमिस्ट्री की क्लासेस में, Right. तो वो मैं आपको इक्वेशन करके, इफ यू परमिट मी, Yes, तो मैं yes, yes, आपको please. बताता हूँ. I would love to. सेकंड देना मेरे को. दिस इज व्हाट हैपेंस. Right. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये हाइप ऑफ द मार्केट है. Okay. Okay, and this hype of the market is because of lot of factors, bad elements who play in the market, then overvaluation because of hype of the sector. जैसे अभी आप देखोगे कि AI में anybody wants to invest. Yes, बराबर. yes, yes. तो AI के वैल्यूएशन में कोई भी AI की कंपनी खाली नाम AI दे दिया और उसके वैल्यूएशंस जो हैं, तो उससे जैसे जैसे हाइप जैसे जैसे होता है, अपन ने पहले देखा हाइप यहाँ तक था, Yes. धीरे 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 ये हाइप अब सबसाइड हो जाएगा. Right. सो वी इन्वेस्ट व्हेन द वैल्यूएशन इज एट दिस लेवल. दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक. Right. और हम इन्वेस्ट करते हैं जब उसकी वैल्यू यहाँ पर हो, सो दैट वी गेट अ बेटर प्राइस.
Right. जब आप ये इन्वेस्ट करते हो और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से जब आपका ये झाग बन करके यहाँ आता है, उस टाइम पे भी एग्जिट. Okay. तो Right. दैट इज दी फिलोसॉफी दैट वी फॉलो. अभी आप ये देखोगे जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स सबसाइड होंगे, हाँ. वैसे वैसे ये झाग बिल्कुल नॉर्मल हो करके इट विल कम टू दिस. Right. तो अगर जो ये प्रिंसिपल आप ध्यान में रखोगे, ये भी मार्केट में झाग है, तो वो ऊपर है तब नहीं हाँ, लेना तो जब झाग है स्टे अवे. राइट. जब ये आप सेटल डाउन हो जाता है या फिर जब ये यहाँ था तब और ले लेना. दूसरे एलिमेंट्स घुसे और इसमें जब झाग बने, उसके पहले अगर जो आपने लिया है तो एग्जिट एट दैट टाइम. और अगर जो झाग है तो वेट टिल दिस ऑल फोम्स सबसाइड्स. राइट. राइट. तो अगर जो आप ये प्रिंसिपल खाली फॉलो करोगे तो प्रोबेबली यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. यू डोंट नीड एनी अदर रूल. जैसा इसमें हुआ है, ऊपर से बिल्कुल ये नीचे तक आ गया है, वैसा ही ये इन्वेस्टमेंट होता है. फिलोसॉफी और मार्केट में होता है. राइट. It is all external, you can say, the illumination, राइट. okay, or hype of the market that will ultimately subside. इसीलिए जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं, दे कंसिडर दैट भाव भगवान है, इसीलिए भाव को भगवान कहते हैं. राइट. बराबर. अभी आप देखो ये बिल्कुल लेवल पे आ गया. हाँ. दिस इज व्हाट, दिस इज द इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द स्टॉक. राइट. And if you are a shrewd investor, because of various reasons, you may get the stock at this price. Got it. And you should keep searching for such stocks which are available at this price. And that is called value of money. Right. And as an investor, if I ask you about your routine, so what is your routine? Like, how frequently do you check the market in your day? Whenever I get the time. If you ask me when do I check the markets, so I look at the screen only when I get the time. Okay. Otherwise, I in the morning track the investments that are there. Okay. Are there any news related to them? Are there any kind of events, corporate events? Are there any kind of developments that has happened? Right. Based on that, I take a call, and based on that, then I go a step further and do my own internal homework, whether these things are triggering a rule of staying invested or exiting investment. Okay. So based on that, then I take a call. So like there is no necessity of looking at your computer from 9 to 3 in the afternoon, right? The investors always have a good amount of time. Okay. So looking at a screen is a kind of looking a movie. That's all. It does not at the end of the day give you anything other than entertainment. Right. But do you think doing such thing like being an initial investor who doesn't have so much experience and looking at the screen constantly and looking at your investment constantly will impact your decisions of invest more or less into such funds? It will definitely make you more impulsive. Right. See, if the stock will go up, either you will book profits or you will buy more at that higher price. If it will go down, you will definitely call multiple people, अरे यार ये क्या हो गया, क्यों गिर गया, क्या लग रहा है. Right. And majority of the people would go by the sentiments, not by the real reason for fall or rise. And आप जिनको भी पूछोगे वो ये बोलेगा कि यार लगता है साला कुछ तो गड़बड़ है, and you will book the loss and exit. But see, markets, it's like a lifeline. And आप कौन सा वो हॉस्पिटल में भी वो देखते हो ना, हाँ, ऊपर नीचे होता है, तभी वो आगे बढ़ता है. अगर जो स्टिल हो गया तो खत्म हो गया. खत्म है. तो market is also like that. It cannot remain at the same price. Right. Right. It has to go up, it has to go down. So most of the people, like even who do not trade or do not even invest in the market, they also have the same question whenever there is, social gathering, market shou chala hai. क्या लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? So what do you think, this type of conversations,
does that give us valuable information or not? इट्स अ टाइम पास. Okay. जो पूछता है उसके लिए भी टाइम पास है और जो आंसर देता है उसके लिए भी टाइम पास है. द वन हु नोज अबाउट द मार्केट विल नेवर आस्क यू दैट मार्केट कैसा लगता है, क्योंकि मार्केट डेली कोई कैसा लगने वाली चीज़ भी नहीं है. Okay. आप रोज सुबह उठोगे और आज मार्केट कैसा लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इंडस्ट्री आज सुबह नहीं खुली क्या? हाँ, right. वो कंपनी बंद हो गई, क्या हो गया? सो इट इज़ नॉट अबाउट के मार्केट कैसा लग रहा है, इज़ अ डेली क्वेश्चन. When there are events, when there are external, say for example US-Iran war, at that time if you ask के market कैसा लग रहा है, तो it makes a sense. Right. But that too again, it's a short-term question. I till now have believed the India story. So for me, market has been and will always remain good. And second is, market कैसा लग रहा है depends on your portfolio also. As you asked me कि आपका prime venture fund has given you Yeah. exceptional. Now market is same for everybody at that point of time. Right. But मेरा market अच्छा रहा, लोगों का market खराब हो सकता है, I don't know. Right. तो आपका portfolio क्या return दे रहा है, in which stocks you are invested, market कैसा लग रहा है depends on that. Okay. Market कैसा लग रहा है आज लोगों के सेंटिमेंट से नहीं. sentiment से, Right. and people will confuse you if you answer that. So I normally don't answer and I always say कि मुझे तो market अच्छा लगता है, I don't know बाकी market कैसा है. And normally I avoid answering this question also. Okay. So there are so many events like global events and even national events that affects our market, right? So say for example there was COVID, which affected globally everyone, right? At such time when there is no hope कि कब अब अच्छा होगा, what do you do? What is your strategy? Like how do you stay calm in this kind of situations and how do you manage your funds at such time when you don't know what is next? एक और secret बताऊं? जी. I made my maximum wealth in post-COVID period. Okay. During COVID, everybody was free and everybody had a, you can say a consensus kind of a thing. Okay, now all companies will become bankrupt, all promoters will go into heavy losses, and everything and everywhere there would be a doom kind of a thing. Right. Barabar? But as I said, I believed and I still believe in India story. Now there can be stories better than India story. So it is again a subject of only a debate. That if you want to debate, you can debate that China is better than India, US is better than India, Europe is better than India. But then ultimately on ground, what matters is where is your investment, Yeah. what is your situation, how much leveraging you have. It all goes with that. During COVID, one thing I was firm was that everywhere, all countries were printing money. And 2008, I studied economic crisis very closely. And in 2008, I was also a council member and elected member of our Institute of Chartered Accountants of India. So I got a chance of delivering lectures also. That was also the reason that I studied that subject very closely. Right. So it's a cycle. And at global level, there is a concept of balance sheet. If you print more money, definitely that money will ultimately Come into market. chase the assets only. Yeah. Right. It may have its own time to flow to specific asset class, but ultimately it will chase assets only. तो आपने जितना भी पैसा प्रिंट किया है, बैलेंस शीट को इक्वल करने के लिए आपको एसेट्स की प्राइसेस को बढ़ना ही होगा, तो ही जाकर के बैलेंस शीट टैली होगी. तो आई बिलीव्ड इन दैट इकोनॉमिक प्रिंसिपल. Okay, so somehow I was convinced that either तो everybody is going to die in COVID, but I had a hope that this is also again going to be an event which will ultimately be a history. And once this becomes a history, what will first happen is that all this liquidity that has been pumped by all these countries,
वेदर यूएस, जिसको अपन स्टिमुलस पैकेजेस बोलते हैं, वो सब स्टिमुलस पैकेजेस का अल्टीमेट इम्पैक्ट ये आएगा कि ऑल एसेट्स विल राइज, Right. and that is what happened. So Yeah. in COVID, luckily I was having a capital. I leveraged on that capital and I invested into good stocks. Achha, you said leveraging. Okay, so what is the concept of leveraging in investments? Leveraging is a very, very important concept when you sit for taking any decision of investing. Okay. Leveraging is a double-edged sword, and it is a weapon which, if you know how to use, it may hit the target. But if you don't know how to use, it may come on you. Yeah. So leveraging is like extrapolating your capital, and it is a capital which comes with a cost, or it is a fund that comes with a cost. So you, just to give you an example, you have 100 rupees and you have borrowed 100 rupees. Okay. Now this is 1:1 leveraging. If you have 100 rupees, you have borrowed 200 rupees. This is 1:2 leveraging. Right. So proportion of leveraging goes with your conviction, goes with your idea, goes with the sense of taking a call about how much to invest and with what risk appetite to invest. So that is leveraging. But the result of leveraging is that, say for example, you have borrowed 100 rupees on your 100 rupees capital. Now that 100 rupees may come with a interest fixed cost of 12 rupees. Right. Okay. So at end of a year, you will have to pay 100 rupees together with 12 rupees. Yeah. You have invested 100 capital and 100 borrowed amount. 200 rupees you have invested into an asset. Now if that asset becomes 400 rupees, okay, so what will happen? Out of 400 rupees, you have to return back 112 rupees. 100 rupees borrowed money, 12 rupees Interest. interest. Right. So you made almost 288 rupees on your capital of 100 rupees since the advantage of leveraging you got. Now we look at the negative advantage of leveraging. You have leveraged 100 rupees on 100 rupees and probably markets have gone down. Okay. When market goes down and it has become, say for example, 150 rupees. So what is the impact? Your liability of 100 stays. Yeah. Your cost of capital of 12 rupees stays. Yeah. You have to return 112 rupees. 112 rupees. So out of 150, you have to return 112 rupees. Yeah. So what you are left behind? Hardly 38 rupees. 38. Yeah. Okay. So from 100 rupees, you are left only with 38 rupees. So the return on your loss on your capital is 62%. 62%. Right. So this is power of leveraging, and this is a weapon should not be used by all. It should be used only by those who know it. Right. And most of the middle class families teach their children that we should not borrow money, we should not take loans, and because it's ultimately debt, and we should only invest when we have money. What do you think about that? As I said, you should borrow money only if you know how to invest it. If you don't know how to invest it, then it is a biggest sin of your life. Right. And whatever examples in society you see that people have lost their fortunes is because they have borrowed money, they have invested into a wrong place, wrong time, wrong price, and when losses came out of panic, because they were leveraged, the borrowers who lent them money came to them that yes, now we are losing confidence in you because your investments are into risky assets. Yeah, right. So probably our capital may be into risk. So please give us money right now. At that time you have to book loss, and you have to return. Probably maybe that after you return that borrowed money, markets may take a U-turn. Yeah. And may reach to a level much above the point where you exited. But since you were leveraged and you did not have a balance of capital, you had no choice than to take the hit.
Okay, what percentage should we keep as our security and what should we invest? So like, say for example, I have 10 lakh rupees, just 10 lakh rupees for myself. And if I want to invest, how much amount should I invest? Can I ask your age? 28. 28. So you still have a long earning span of your life left. Right. Okay. So according to me, you should have a risk appetite. These are all standard thumb rule examples I am giving. Otherwise, it goes on case to case. But considering your age bracket, your span of life left for making money, you should have a higher risk appetite. Right. So 10 लाख रुपीस में से आपको मेरे हिसाब से 8 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस, और 2 लाख रुपए आपको रखने चाहिए फॉर योर इमीडिएट फैमिली नीड्स, इमीडिएट अपकमिंग फाइनेंशियल Emergencies. कमिटमेंट्स, Right. इन सब के लिए, सो दैट यू डोंट लूज योर पीस ऑफ माइंड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आपका पैसा आपके लिए कमाना भी शुरू कर दे. Right. So you told me about risk appetite. Okay, so ये risk appetite क्या है और मतलब एज के हिसाब से वो कैसे चेंज होता है? See, अब मैंने आपको इसीलिए आपकी एज पूछा क्योंकि अभी अगर जो आपको थोड़ा लॉस लग भी गया तो आपके जो दूसरे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ इनकम्स हैं वहाँ से यू विल बी एबल टू जनरेट. अब यही क्वेश्चन सपोज मुझे कोई पूछे कि मैं 80 साल का हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? अब वो सपोज 8 लाख रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट में डाल देना. इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि ओनली लॉस इज द रिस्क. कभी कभी इन्वेस्टमेंट अटक भी जाता है. आपने रियल एस्टेट में डाला और अब वो रियल एस्टेट नहीं बिक रहा है. हाँ. आप 80 साल के हो Right. और आपको पैसा चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर अर्निंग सोर्स. Right. तो एंड एट दैट एज आपको दिस ऑल आर जनरल रूल्स ऑफ द लाइफ, बट उस एज में आपको और कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं मिलेगा जो आपको और पैसा दे दे. Right. तो यू विल लूज योर So liquidity हमेशा रहनी चाहिए. लिक्विडिटी हमेशा रहनी चाहिए. Right. Right. एंड वन थिंग आई बिलीव इज यू शुड डू नथिंग एट कॉस्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी लाइफ. बराबर. तो 80 साल वाले को और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी प्रेजेंट अच्छी क्वालिटी लाइफ छोड़ करके और पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल. Right. बट आपको अभी लंबा चलना अभी है. घुड़सवार बनना है. हाँ. तो आपको लंबा चलना है. Right. Okay, so what advice would you give to any young person who has just started earning, जिसका अभी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, समझ लो उसका 30-40,000 का सैलरी अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड. सो उसको डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टार्ट करना चाहिए या कैसे अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना चाहिए? डिसीजंस लेना स्टार्ट करो ना, उसके पहले 2-3 चीज़ें आपको अपने कैरेक्टर में इनबिल्ड करनी चाहिए. दैट इज पावर ऑफ सेइंग नो. Okay. Okay. And second is you have limited capital and unlimited opportunities. Can you explain both the things? Both are complementary to each other. आपने अगर जो एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे पास कैपिटल तो लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा ना तो आपको नो बोलना पेनफुल नहीं लगेगा. नहीं यार ठीक है मैं बताता हूँ. हाँ. बराबर. बट आपको ये लगेगा नहीं मेरे पास अभी 100 रुपया बैंक में है, यार ये बैंक में तो कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूँ. ओके. तो कोई भी सपोज अपॉर्चुनिटी लेके आया आज आपके पास कि राकेश भाई मेरे को ये 100 रुपया दे दो, मैं आपको साल का 8% दे दूंगा. आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब आपका पैसा तो ब्लॉक हो गया. हाँ. कल कोई आया कि नहीं यार अपना इसमें इस इन्वेस्टमेंट में अपने को अच्छा रिटर्न छूट रहा है, तो क्या करें? वो प्रॉब्लम हो जाएगा. पैसा नहीं है, वो रिग्रेट होने लगेगा कि हाँ. अब उस टाइम पे आपने वो टूल यूज किया होगा पावर टू से नो, तो आपके पास 100 रुपए होते हैं अभी. राइट. वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए. राइट. तो आपको एक आपका टारगेट बनाना पड़े कि मुझे किस रिटर्न ब्रैकेट में जाना है, कंसिडरिंग योर, बिकॉज
रिटर्न इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विथ रिस्क, मतलब तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसको बोलते हैं वो कम्प्लीटली इंटरलिंक्ड है। तो आपकी एज कम है, आप में एंथुजियाज्म है, आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट है, आपने जो एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, फंड्स किया है फॉर इन्वेस्टमेंट, देयर ऑल्सो दैट यू कैन टेक अ रिस्क। तो फिर आपको उस रिटर्न ब्रैकेट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और आपको कोई सेफ बेट लेनी है, क्योंकि सपोज से फॉर एग्जांपल 2 साल बाद में मेरे बेटे की शादी है, मुझे उसके लिए कैपिटल चाहिएगी, तो मुझे उसी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो मुझे 2 साल बाद में वो पैसा मिल जाए। मैंने आज उसमें रियल एस्टेट में डाल दिया, 2 साल बाद शादी है और वो रियल एस्टेट नहीं बिका, तो मैं क्या करूँगा? राइट। सो जिस हिसाब से अपने पैसे चाहिए उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उस सेक्टर में या उस तरह से। और इसके लिए आपको एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो आई हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग, आपको साल के बिगिनिंग में एक बार पेन और डायरी लेके बैठना चाहिए और आपको नेक्स्ट 10 साल का आपको माइलस्टोन लिखना चाहिए। ओके। कि मेरा इस साल में मुझे मेरी कितनी इनकम रफली होगी और मेरे कमिटमेंट्स कितने हैं, या मुझे क्या करना है, मुझे नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, XYZ करना है, क्या करना है मेरे को। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी 3 साल मुझे कमाना है, 3 साल के बाद में एक स्टेज आएगा जब मुझे एक नया घर लेना पड़ेगा, या बेटे बेटी की शादी आएगी, या XYZ माइलस्टोन आएगा, 5 साल बाद में मुझे ये आएगा, 6 साल बाद में मुझे ये आएगा। तो आपको लगेगा जब आप ये सब माइलस्टोन लिखोगे ना, तो आपको एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का पता चलेगा। राइट। कि नहीं, अदरवाइज क्या हो जाता है कि आप बहुत हफाजात डिसीजंस लेते हो लाइफ में, कि मेरे पास 100 रुपया है, चल 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 मेरे को हर्षल तूने बताया कि इसमें डाल दे, मैंने डाल दिया। अब कल साला 100 रुपया चाहिए, हर्षल किधर है, तू मिलता ही नहीं मेरे को, मेरे को 100 रुपया चाहिए। नहीं, लेकिन आपने जो प्लानिंग किया होगा तो मालूम चलेगा कि नहीं मेरे को तो साल भर बाद में तो मेरे को 100 रुपया चाहिए। मैं अभी तेरे कहने से डाल दूंगा तो मेरे पास उस टाइम पे होगा, तेरी गारंटी है कि देगा। बोलता है तो डालता हूँ। तो अगर जो ये क्लैरिटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप भी भले 28 साल के हो, लेकिन आप नेक्स्ट 10 साल का आपका माइलस्टोन लिखना और उसको आपके फाइनेंशियल जो भी बजटिंग है एंड आपके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो आपकी अभी विजिबल इनकम है, बराबर, और आपको आगे लाइफ में क्या करना है, उसके साथ आप को रिलेट करना, विल गेट अ वेरी इट वुड बी अ वेरी एंटरटेनिंग गेम। ओके। एंड उसको आप वैसा भी कर सकते हो कि मेरे को 2 साल के बाद में घर लेना है, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए और अभी तो मेरे पास 5 लाख ही है। तो आप सोचोगे साला 2 साल में 5 लाख तो कमाना है। राइट। तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। बट दैट गेम को आप मजा तभी ले सकोगे जब खेलोगे। तो इसलिए पेन और डायरी ले करके नेक्स्ट 10 या 15 साल का, तो तब आपको ये भी पता चलेगा कि लाइफ बहुत छोटी है। वेरी ट्रू। जब हम लिखते हैं ना तब समझ में आता है कि यार इतना सब तो चला गया है। आप से फॉर एग्जांपल 28-30 साल के हो, 20 साल हाँ करते निकल जाता है। 20 साल के बाद में यू विल बी एट 50s। उस टाइम पे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज अलग होगी, आपकी एपेटाइट्स अलग होगी, बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। राइट। बट 20 साल का पीरियड आपने कितना प्लानिंग और कितना पैशन से पास किया है, तो उसका मजा 50वें साल पे आएगा। ओके, कोई इंसान अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है ऐसे स्टॉक मार्केट्स में, वो अभी फेमिलियर हो ही रहा है, तो उस इंसान को आप क्या एडवाइस दोगे कि क्या क्या मिस्टेक्स वो अवॉइड कर सकता है? देखो, एक बुक जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, दैट इज 100 बेगर्स। नए इन्वेस्टर को वो पढ़नी चाहिए। दूसरा, अवॉइड टेकिंग टिप्स एंड इन्वेस्टिंग ऑन दोज basis, and third is have your own research and conviction। आपको अगर जो ये तीनों चीज नहीं करनी है या नहीं आती है, तो बेटर इज यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स या यू इन्वेस्ट इनटू बॉन्ड्स। इक्विटी इज नॉट योर कप ऑफ टी। Right. So if you want to invest in equities, you should do your own research. You should. It will give you courage to stay during turbulence. Right.
Okay. And the book you suggested, okay. Are there any other books that any investor should read? There are plenty of books, Psychology of Money. There are plenty of books. So, But the books that you recommend, that ये तो पढ़नी ही चाहिए सभी investors को. so one is 100 Beggars, second is Psychology of Money. They both will give you a lot of insights about investing. But Right. there are, you keep reading the philosophies of Warren Buffett and likes of people. And also you keep, second thing that any investor should do is, rather than first reading these books, they should study the failure stories. Okay. फेलियर स्टोरीज आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी लाइफ में फेलियर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे. Right. Because we learn from the mistakes of others. उन्होंने क्या मिस्टेक किया हाँ. वो साला अपन क्यों रिपीट करें. Right. So where can we get this failure stories? कहाँ से अभी मिल सकती है तो हमें? बहुत सारा मसाला पड़ा है गूगल में. और यू सेकंड इज आप न्यूज़पेपर Right. डेली पढ़ो और उसमें से जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है ना, से फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा लग रहा है, टीसीएस की न्यूज़ आई है तो पढ़ो टीसीएस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, Okay. वो एआई के साथ कितने अलाइंड हो रहे हैं, बराबर. और जो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन आईटी कंपनीज दे हैव मिस्ड द एआई थीम, तो वेदर इट इज़ अ फैक्ट और नोशन जिसके बेसिस पे आज टेक स्टॉक्स बहुत लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो इज इट एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट. वो आप जितना पढ़ोगे उतना मालूम चलेगा और जितना आपका कन्विक्शन होगा उतना आपको पेशेंस Okay. मिलेगा. ओके सो हमने बिगिनर इन्वेस्टर की तो बात करी, लेकिन कई बार कैसा होता है कि लोगों ने पैसा कमा लिया है, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, लेकिन दे डोंट नो इन्वेस्टमेंट और दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी. सो व्हाट वुड यू से टू दैट पीपल? तो आप कहना ये चाहते हो कि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, हाँ. तो दे शुड रीच टू एक्सपर्ट्स. अगर जो उनको इन्वेस्टिंग नहीं आता है तो दे शुड नॉट टेक अ चांस, दे शुड रीच टू एक्सपर्ट्स. उनकी राय लेनी चाहिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट. Right. और गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ, आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे जब लोगों की कमाई हुई पूंजी पूरी कहीं ना कहीं डूब जाती है, एंड देन लेटर ऑन दे रिग्रेट. Right. तो बेटर इज कंसल्ट एन एक्सपर्ट. कोई बुराई नहीं है. I'll ask आप अपने लिए everyone पूछ to- रहे हो क्या आगे 2-5 साल में Yes. आपको क्या करना है. मुझे खुद से तो आने से रहा इतना ज्यादा, तो आई विल कम टू यू ओनली कि सर अभी पैसा तो कर लिया है मैंने थोड़ा. सो एआई हैज revolutionized every industry right now. Has it revolutionized this finance sector as well? बहुत कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए? AI has completely disrupted the whole human life cycle, I would say, or a human routine. And AI is an opportunity also, at the same time threat also. Opportunity in the sense, जितना आप AI को आपके एडवांटेज में यूज़ करोगे उतना आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है. बट आप AI को अगर जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और वैसे ही नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो सबसे बड़ा थ्रेट इज़ टाइम पास एंड टाइम वेस्ट. राइट. एंड सेकेंड इज़ के इट विल डिसरप्ट लॉट ऑफ बिजनेसेस. ओके. सो फाइनेंशियल साइड में इट विल डिसरप्ट लॉट ऑफ बिजनेसेस, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस की थीम्स, बिजनेस के आइडियाज़, बिजनेस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर वो खड़े हैं वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल उसको डायरेक्टली इन अ इजी वे मैं आपको बताऊं, ईवी आने से पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में जो डिसरप्शन आया है ओवर ए पीरियड, अगर जो ये डीजल महंगा या पेट्रोल महंगा रहा तो जितना ईवी पेनिट्रेट करेगा उतना पेट्रोल और डीजल बनाने वाली कंपनियों के लिए थ्रेट है. अब उन लोगों ने अगर जो चेंज करके ईवी में आने लग गए
तो उनके लिए दे हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म ऑफ हाँ। ऑटो कंपनी, राइट. तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी. बट वही ओल्ड माइंडसेट में रहे कि नहीं, तो वो हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर बनने में भी देर नहीं लगेगा. Right. Okay, so talking about social media now, do you think कि social media आने से investment जो sector है उसमें काफ़ी ज़्यादा changes आए हैं, और जो नए investors हैं उनके लिए क्या ये अच्छी बात है कि social media से हमें बहुत ज़्यादा news बहुत जल्दी पता चलता है कि उससे कुछ तो गड़बड़ हो रही है? नहीं बेटे, काफ़ी अच्छी चीज़ है. ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, दैट इज स्पीड ऑफ न्यूज़ Information, right. एंड स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आप अगर जो आपके एडवांटेज में उसको यूज़ कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट. बट आप रोज़ उसको देखोगे कि साला वेदांता में अभी क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका बिजनेस डेली चेंज नहीं हो सकता है. बट अगर जो आप उसको देखोगे, वेदांता में अभी डीमर्जर आ रहा है, ये अब तो आपको जल्दी पता लग गया, तो एट द राइट टाइम ऑफ द वैल्यूएशन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो आपके फेवर में जाएगा. बट आप डीमर्जर के बाद में भी अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अनिल अग्रवाल ने पास्ट में क्या किया था, वो सब चीज़ें भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. अब आप उनको पढ़ते रहोगे तो विल नॉट मेक difference in your life. Yeah, right. So today we have talked about stocks and how to invest, and I got it completely now. So it's the first step. I will learn more I from think you liked it. Yes, I liked it very much. So one thing I would like to ask you is how important part a luck plays in this game, because there's so much about timing in this, right? See, luck has its own importance, and luck को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि there is a saying, पुरुषार्थ पहले या प्रारब्ध पहले. अगर जो आपको भी इसका आंसर मिले तो मुझे बताना, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूँ. Okay. क्योंकि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही पैरेलल चलते हैं. प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ करोगे तो प्रारब्ध बनेगा. एंड दोनों की वैल्यू ज़ीरो जैसे है. सपोज एक चीज़ भी ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. राइट. और दोनों अगर जो 1 है तो 1, या दोनों अगर जो 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. राइट. तो अब प्रारब्ध तो भगवान ने दिया है और पैसा आपके यहाँ लिखा हुआ है. हाँ, आप कितना भी सोच लो कि मैं पैसा मेरी होशियारी से बना लूँगा, तो इट्स अ मिथ. Right. Okay, and today your whole family into this finance sector. So, can you tell me how important is building wealth for you compared to just money? So, like, how is wealth different from money for you? So you mean to say that money is not wealth? There are a lot of other parameters. Yeah, of course. And yes, you touched the right point. And I also believe in same. लोग हैप्पीनेस जो है ना, उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं रखते हैं, उसको खाली बातों में रखते हैं और दिन भर पैसे के पीछे भागते हैं. तो जब आप एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट बनाते हो तो टेंशन ज़्यादा रहता है और बैलेंस शीट थोड़ी सी वीक बनती है. राइट. तो एज आई सेड इन माई अर्लियर कन्वर्सेशन ऑल्सो, आई डोंट डू एनीथिंग एट कॉस्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी लाइफ. राइट. आप ये 2-3 चीज़ें एक बार कर लो कि नथिंग एट कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी लाइफ, पावर टू से नो, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़. ये चीज़ों 3-4 चीज़ें आप 5-7 लिख करके रख लोगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि दे आर वेरी पावरफुल weapons and they can help you a lot. Right. Okay, and what do you want they inherit from you apart from your wealth? Probably the good quality life that I have lived till now. Right. And I hope to live ahead also. Similar kind of life they live, number 1. Number 2, values of family. Like मैं आज भी डेली सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा पापा मम्मी के साथ बैठता हूँ. एंड मुझे उसमें जितना सुकून मिलता है वो पूरा दिन ऑफिस में बैठने से नहीं मिलता है. राइट. तो ये जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये फैमिली वैल्यूज़ आप जितना देखोगे उतना ही सीखोगे. तो मैं चाहूँगा कि भी वो बच्चे भी ये फैमिली वैल्यूज़ सीखे. एंड सेकंड इज़ एथिकल वैल्यूज़, कि
never cheat, and with the ethical value, courage, never cheat but never get cheated. Okay, and do you believe और in? बाकी तो आपकी आजकल जिंदगी हमको ज़्यादा सिखाती है हमसे सीखने पे. No, we learn a lot from you, and I especially learned a lot from you. But do you believe in charity and donations? I do believe, and I would say everybody should believe, but then there is another saying also that charity में एक हाथ जो करता है वो दूसरे हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए. Yeah. And form of charity is more important than charity. Okay. चैरिटी आप मंदिर मस्जिद में देते हो वो भी चैरिटी है, बट मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि आप मंदिर मस्जिद में दो, उससे ज़्यादा म्यूनसिपल स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर इफ़ यू कैन डोनेट एंड मेक द लाइफ डिफरेंट फॉर देम बिकॉज दे आर इन रियल नीड. Right. Very true. So सर, मुझे एक चीज़ की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपने नाम रखा है रारू फैमिली ऑफिस, बट आई हैवंट हर्ड रारू एज किसी भगवान का नाम, या आई डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ रारू. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? रारू आपने अभी तक सुना नहीं है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट आज की तारीख में रारू छोटा है, आने वाले समय में बड़ा होगा. Yeah, of course, but what does the meaning of Raru exactly? Raru is into two parts. Raru mein Ra stands for my son Raghav, and Ru stands for my daughter Ruchi. Oh, nice. So that's how your son and daughter with your family. Whole. Wow. Everyone is in finance now. I'm That's lucky great. that everybody are my pillar of this family office. Very nice. Thank you so much, sir. Today's conversation was not just about investing, it was about investing smartly, plus building your wealth and making leadership qualities and trust and everything around us. So, thank you so much for sharing your insights of this journey. Same here. Thank you, Shivani. So, I had a great time learning about investmentorship from Rakesh Lahoti. What about you? Did you learn something new? Well, I think everyone who are in business, whether it's business owner or entrepreneur or business leader, you must have so many things to learn from Rakesh Lahoti ji. If you got something, share this episode with other people as well. Thank you so much and keep watching us for new episodes.